بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہربلسٹ پلانٹ سائنٹسٹ ڈاکٹر اسلم چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے براڈ اسپیکٹرم ہربل ڈرگز ٹو ٹریٹ دا کارڈیوواسکولر اینڈ ادر ڈیزیز. ناظرین، میں کوالیفائڈ ہربلسٹ ہوں، پلانٹ سائنٹسٹ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہربلز کے ساتھ ساتھ میں نے ہومیوپیتھی اور فارماسیوٹیکل ڈرگز کو بڑے ڈیپ اسٹڈی کیا اور اس کے اوپر میری بہت سالوں کی ریسرچ ہے. اور اس کو میں نے کمپیریزن کیا ہے کہ فارماسیوٹیکل ڈرگز کیا ہیں اور ان کا کنٹرول کیسے ہے ڈیزیز کے اوپر، اور ہربز کیا کرتی ہیں اور ہربز سے ہم کتنا بینیفٹ لے سکتے ہیں. کیونکہ فارماسیوٹیکل ڈرگز کا سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوتا ہے کمپیریٹیولی، ان کا ہربز کا کم ہوتا ہے. تو میں نے ان ڈرگز کو کنٹرول دیکھا ہے کہ ڈیزیز کے اوپر کنٹرول کتنا ہے اور کس طرح سے یہ ایکٹ کرتی ہیں اور کیسے ان کا سائیڈ افیکٹ ہے. تو ان کا وقت فوقتاً انشاءاللہ میں آپ کو اس کا کمپیریزن دیتا رہوں گا. تو ناظرین، ہم بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ براڈ اسپیکٹرم ہربل ڈرگز ٹو ٹریٹ دا کارڈیوواسکولر اینڈ ادر ڈیزیز. آج کا جو براڈ اسپیکٹرم ہربز جس کا میں بتا رہا ہوں اس کا نام ہے گارلک. اب گارلک ناظرین سب آپ نے نام سنا ہوگا. گارلک انگلش میں اس کو کہتے ہیں. اس کا بوٹینیکل جو سائنٹیفک نیم ہے اس کا نام ہے ایلیم سیٹیبم. ایلیم سیٹیبم کہتے ہیں اور اس کو لسن بھی کہا جاتا ہے، تھوم بھی کہا جاتا ہے. ڈفرینٹ لینگویج کے اندر اس کا ڈفرینٹ نیمز ہیں. تو آج اس کی سب سے پہلے ہم اس کا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ براڈ اسپیکٹرم کیا چیز ہے. ناظرین، براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک فارماسیوٹیکل میں اس ڈرگز کو کہا جاتا ہے جو کہ گرام پازیٹیو بیکٹیریا اور گرام نیگیٹو بیکٹیریا دونوں کو کل کرتے ہیں. یعنی کہ ایسی ڈیزیزز جو گرام پازیٹیو کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ایسی ڈیزیز جو گرام پازیٹیو کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہ دونوں کے اوپر اینٹی بایوٹک جو براڈ اسپیکٹرم ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. تو دس از کالڈ دا براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہربز کے اندر ایسی اینٹی بایوٹک دی ہیں جو کہ براڈ اسپیکٹرم ہیں اور جو صدیوں سے یوز ہو رہی ہیں. آج کل اس کا بھی یوز ہو رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے، ہوتا رہے گا. اور اس کا ایکسیلنٹ کنٹرول ہے ود دا منیمم سائیڈ افیکٹس. آپ کو پتہ ہے کہ ہومیوپیتھی کے اندر یا ہربز کے اندر ان کی جو ڈرگز ہیں جو ان کے سائیڈ افیکٹ کم ہوتے ہیں اور فارماسیوٹیکل میں زیادہ ہوتے ہیں. تو ناظرین، آج ہم پہلے چلتے ہیں اس کے پراپرٹیز کی طرف کہ گارلک جو ہے وہ کون سی پراپرٹیز رکھتا ہے، اس کے اندر کون سی پراپرٹیز پائی جاتی ہیں. ناظرین، گارلک جو ہے یہ اس کو ایک بلب جو ہوتا ہے اس کے اندر 15 سے 20 کلوز پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 15 سے 20 جو ہوتے ہیں وہ کلوز ہوتے ہیں. ایک بلب اس کے اندر 15 سے 20 کلوز ہوتے ہیں. اب ایک کلوز کا جو ایکول ٹو 1 to 3 گرام کے برابر تقریباً ہوتا ہے، اس کا ویٹیج ہوتا ہے. اب اس میں یہ سب سے پہلی بات جو ہے یہ اینٹی بیکٹیریل ہے. اس میں ایک ایسا کیمیکل پایا جاتا ہے جس کو سلفر بولتے ہیں. یہ نیچرلی اس کو اینٹی بایوٹک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ اینٹی بایوٹک کے طور پہ ہمارے جسم میں کام کرتا ہے. اب اس میں دیکھا یہ اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اینٹی فنگل ہے، اینٹی وائرل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی انفلیمیٹری کی خصوصیت رکھتا ہے. پھر اینٹی آکسیڈنٹس خصوصیت رکھتا ہے. تو ناظرین، یہ جو ہمارا ایک گارلک ہے اس میں بہت ساری ایسی پراپرٹیز ہیں جو ہمارے جسم کو کی بہت ساری بیماریوں کو وقت ٹریٹ کرتے ہیں. ناظرین، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب اس میں چونکہ بہت ساری بیماریوں کو وقت یہ گارلک جو ٹریٹ کر سکتا ہے، لیکن ہم ساری بیماریوں کو اس میں ڈسکس نہیں کریں گے. تو آج ہم اسپیشلی ڈسکس جو کریں گے وہ کارڈیوواسکولر ڈیزیز کے اوپر کریں گے. اب کارڈیوواسکولر ڈیزیز کے اندر آپ نے کون سی ڈیزیز ہو سکتی ہیں جو کہ اس میں آپ کو پرومیننٹ ہوتی ہیں.
इसमें आपको पता है कि इसमें बहुत सारा आपने हार्ट अटैक का नाम सुना होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अलावा इसका एंजाइना हो सकता है इंसान की थ्रम्बस की वजह से जो आर्टरीज़ के अंदर खून जम जाता है, थ्रम्बस जमने के उसके बाद ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इसको ये ट्रीट करता है। और इसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी का हमारा है उसमें कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज करता है। नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में दो किस्म का होता है, एक एलडीएल होता है और एक एचडीएल होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये गार्लिक जो है हमारे जिस्म में, ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल को जो नॉर्मलाइज करता है। इसके साथ साथ ये हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। फिर ये प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होने देता। जब एग्रीगेट्स होते हैं तो ब्लड सप्लाई की रुकावट होती है, जिसमें आर्टरी के अंदर जो ब्लड चल रहा होता है उसकी रुकावट होती है, जिसकी वजह से ब्लड जो जाना होता है उस रफ्तार से, उस स्पीड से नहीं जाता, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम आते हैं। तो जिसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो हैं वो होने की जाती है। इसी तरह थ्रम्बस बनता है जो कि प्रोटीन्स होती हैं, उसके अंदर फाइबर्स होता है और वो स्टक हो जाता है नालियों में, जिसकी वजह से एक ब्लड फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल कम करता है, लिपोप्रोटीन्स को नॉर्मलाइज करता है। लिपोप्रोटीन जो लिपिड प्रोफाइल है उसको नॉर्मलाइज करता है हमारे जिस्म में। तो नाजरीन, इसमें आप देखें कि ये यक वक्त जो गार्लिक है ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर एक तो ब्लड को थिन करता है, प्लेटलेट्स को एग्रीगेट्स नहीं होना देता, और आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको नॉर्मलाइज करता है, और इसके साथ आपका कोलेस्ट्रॉल जो है उसको नॉर्मलाइज करता है, और अब बॉडी की जो इन्फ्लेमेशन डिजीज़ हैं उनको भी कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ ये कि जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, तो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे ये अपनी आपके बॉडी के ऊपर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में बड़ा हेल्पफुल है। लिहाजा इसमें आप देखा जाए तो जो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के साथ साथ ये कैंसर डिजीज़ में बड़ा हेल्पफुल है, डायबिटिक में बड़ा हेल्पफुल है, वेट लॉस कर सकता है, सेक्सुअल डिजीज़ की वीकनेसेस को दूर कर सकता है। फिर इसमें बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो मैं इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि कौन सी डिजीज़ के अंदर इसको गार्लिक जो है किस तरह यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये जो हर डिजीज़ में इसका एक मेथड नहीं है यूज़ करने का। हर बीमारी के अगेंस्ट में इसकी मेथडोलॉजी का डिफरेंट है, इसकी डोज डिफरेंट है, इसका लेने का टाइम डिफरेंट है, इसका लेने का तरीका डिफरेंट है। लिहाजा इसको आपने अब आज की वीडियो के तवज्जुह से मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के हवाले से इसको आप ले लें। तो नाज़रीन, इसका जब इसके अंदर एक मैंने आपको पहले बताया कि जब इसकी सल्फ़र पाया जाता है, जब इसको हम जब इस क्लोव को क्रश करते हैं तो क्रश करने के अंदर इसका केमिकल एक्टिवेट हो जाता है। इसमें एंजाइम होता है, जो एंजाइम एलिनेज एंजाइम जो है वो इसके एक केमिकल जो होता है इसमें एलन को एलेसन में चेंज कर देता है। एलेसन एक ऐसा केमिकल जिसकी वजह से इसमें स्मेल भी होती है, और इसके साथ साथ ये हमारी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे हमारे जिस्म में काम करता है। तो नाज़रीन, अब हम इसको आते हैं कि इसकी डोजेज की तरफ। हमने इसको लेना कैसे है और कितनी मकदार में लेना है। अब नाज़रीन, इसका कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर इसको आपने 3 क्लोज पर डे, सुबह दोपहर शाम, ट्राइस अ डे आप इसको ले सकते हैं विद मील एंड विद आउट मील। अब इसमें देखना ये है कि लेना किस तरह से, बहुत से तरीके से इसको लिया जा सकता है। इसको आपने एक तो रॉ फॉर्म में लेना है, दूसरा आपने इसका क्रश करना है। एक क्लोव को क्रश करें, क्रश करने के बाद नीम गर्म पानी लें, उसके साथ आप इसको निगल लें, इसको खा लें आप। इसी तरह से आप अगर दोपहर को लें, इस तरह आप शाम को लें। तो इसकी डोजेज जो है रिकमेंडेड जो है वो 6 मिलीग्राम से लेके 2400 मिलीग्राम तक इसको आप पर डे ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ज़्यादा लेंगे तो ये और प्रॉब्लम, इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। लिहाजा नाजरीन, इसकी डोजेज को ख्याल रखना है और इसको लेना कैसे है ये भी हम। इसका अगर आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर जो लोग जिन हार्ट अटैक में इन्वॉल्व हैं, आर्टरीज़ के प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हैं, ब्लड प्रेशर के इन्वॉल्व में हैं, इसमें इसका एक और भी तरीकाकार है कि आप इसका पानी भी ले सकते हैं। पानी आपने कैसा इसका तैयार करना है,
आप थोड़ा सा पानी लें, 1 गिलास पानी का ले लें, उसमें आप इसको चॉप करें, इसको क्रश करें 1 क्लोव्स को और उसमें डाल दें और थोड़ा सा इसको बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद जब थोड़ा सा बॉयल हो जाए तो इसमें आप इसको स्टेन करके इसमें थोड़ा सा, अगर आप डायबिटिक के पेशेंट नहीं हैं तो इसमें थोड़ा सा हनी मिक्स कर लें और साथ आप नींबू का रस भी थोड़ा आप इसका मिक्स कर सकते हैं। करने के बाद इसको आप ले सकते हैं। ये भी एक तरीक़ाकार है इसका लेने का। तो डिफरेंट तरीक़ाकार हैं। नाज़रीन, आप ये तो मैंने बताया कि ये डोजेज़ हैं इसकी। अच्छा, अब इसमें ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो इसको नहीं ले सकते, ये भी है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट ऐसे भी हैं जो इसको यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए नुकसानदेह है। ऐसे पेशेंट जो कि लोअर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं या फिर एज़मा के पेशेंट्स हैं, वो इसको यूज़ ना करें, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर को लो करता है, लो को हाई नहीं करता। अब हाई ब्लड प्रेशर, जिनका लोगों का लो ब्लड प्रेशर रहता है, अगर उनका वो प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। उनका इंशाल्लाह उनके लिए और हर्ब्स हैं जिनको वो हम उसका लो से हाई किया जा सकता है। एज़मा के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा एक्सीडेंट कंट्रोल भी और भी बहुत सारी हर्ब्स हैं। लिहाजा और ऐसे पेशेंट जिनका ऑपरेट होना है, जिनका अपकमिंग 1 वीक के अंदर या अपकमिंग में डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आपका ऑपरेशन होगा, तो वो लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्लड थिन करता है। अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो ब्लड और थिन हो जाए, जिसकी वजह से ऑपरेशन में प्रॉब्लम आएंगे। ऐसे लोग जिनको हार्ट बर्न का प्रॉब्लम होता है, हार्ट बर्न एक मैदे की गैस होती है जिसकी वजह से जिसमें ये मैदे में जलन होती है, अगर वो गार्लिक का यूज़ करेंगे तो वो हार्ट बर्न और बढ़ जाएगी। हाँ, हार्ट बर्न के पेशेंट वो ले सकते हैं उसको, लेकिन वो इसको ड्राई करें, ग्लोव्स को ड्राई कर लें, उसको क्रश कर लें। क्रश करने के बाद उसको खाली कैप्सूल लेके अब उसको अंदर फिल करके अब वो सुबह दोपहर शाम वो कैप्सूल की फॉर्म में ले सकते हैं। कैप्सूल जो है वो आपका स्टमक में जाके डिज़ाल्व नहीं होगा, वो इंटेस्टाइन में डिज़ाल्व होगा, जिसकी वजह से आपका हार्ट बर्न का प्रॉब्लम जो है ओवरकम हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये देखा आपने कि अगर आप एक प्रोफेसर के पास जाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे एक प्रॉब्लम लेके कि डॉक्टर साहब मुझे हाई ब्लड प्रेशर भी है, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी हाई है और मेरा ब्लड जो है वो भी थिक है, तो ये डॉक्टर क्या करेगा, आपको हाई ब्लड प्रेशर की अलग मेडिसिन देगा, आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग मेडिसिन देगा और उसके साथ साथ आपको प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए अलग मेडिसिन देगा। इट मीन्स कि आपको वक्त 3-4 मेडिसिन लेनी पड़ेगी, फिर आके आपके प्रॉब्लम जो है ये ओवरकम होंगे। जबकि अल्लाह तबारक तआला ने हमें जो हर्ब्स दी है, ये गार्लिक की सूरत में हमें, तो ये वक्त बहुत सारी बीमारियों को ये डील कर रहा है। और आपने सुबह दोपहर शाम 1-1 क्लोव लेना है और आपके ये प्रॉब्लम सारे हल हो जाने हैं। तो लिहाजा ये जो आपने देखा कि ये आपकी बॉडी की वेलनेस को इन्हांस करेगा और आपकी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। जिस तरह आजकल कोरोना आया हुआ है, तो जो कोई एंटीवायरल भी है तो इसमें भी ये हेल्पफुल हो सकता है। लिहाजा आपकी बॉडी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी तो आपकी बीमारियां जो हैं वो कम से कम आपके ऊपर हैवी होंगी। तो नाज़रीन, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें, इसको लाइक करें। अगर आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो उसमें ये होगा कि आपकी एक नेकी है, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि ये लोगों के फ़ायदे की है, पेशेंट के फ़ायदे की। जितने लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे तो आपको नेकी मिले। को प्लीज़ इसको स्प्रेड कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ऑन द अदर हैंड, आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप दबाएं, ताकि आप जो भी हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो ही आएगी तो वो आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। तो लिहाजा नाज़रीन, इंशाल्लाह मैं आप पे दावा करता हूं कि इंशाल्लाह अगर आप मेरी वीडियो के साथ अटैच रहेंगे तो आप अपनी वेलनेस को इन्हांस करेंगे हर्ब्स के ज़रिए, और इंशाल्लाह आपको मेडिसिन से जान छूट जाएगी और एलोपैथिक से आपको मेडिसिन कम से कम लेनी पड़ेगी और आपका नेचुरल कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में होगा और बहुत सारी बीमारियों का कंट्रोल आप अपने खुद ही इसको ट्रीट कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक तआला आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुशो खुरम रखे, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।